Yes, ma'am. Okay, so this is your science syllabus which is given in the CBSE and it's ninth class 9th structure. Unit 1, matter, its nature and behavior is of 25 marks. And unit 2, organization in living world, 22 marks. Unit 3, motion, force and work, food production, 6 marks. Total is 80 marks. Internal assessment is 20 and grand total is 100. That means जैसे पिछले टाइम पर होता था, जब ये कोरोना टाइम नहीं था, उससे पहले जब ईयरली सिलेबस होता था, वैसा ईयरली पैटर्न में ही आपका पेपर होगा. अब कोई टर्म 1 टर्म 2 नहीं है. और एक ही बार आपका 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट जाएगा. पेपर आपका 80 मार्क्स का बनेगा, जो हाफ ईयरली का बनेगा और फाइनल का. दोनों टाइम अब आपके 80 मार्क्स के पेपर बना करेंगे. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. करेंगे. Cumulative will be of 15 or marks. 5 marks will be art integrated activity. Clear? यूनिट 1 मैटर है. यूनिट 1 में नेचर और उसका बिहेवियर है. Definition of matter: solid, liquid, gas, characteristic shape, volume, density, states, melting, absorption of heating, freezing, evaporation, condensation, sublimation. यानी कि पहले आपका टर्म 1 के हिसाब से प्रीवियस ईयर चैप्टर 1 नहीं आता था, बट इस बार आपका चैप्टर 1 दोबारा से आ रहा है. चैप्टर 1 इज इंक्लूडेड. तो दिस इज द न्यू एडिशन. अब चैप्टर 2 जो नेचर ऑफ मैटर है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें आपका सेकंड चैप्टर का नाम ये है क्या मैटर आपके अराउंड में जो है वो प्योर है. उसमें आपके सारी चीजें, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर्स, हेट्रोजेनस, होमोजेनस. इज इट क्लियर? Then particle nature and their basic units: atoms, molecules, law of chemical combinations, chemical formula. That is chapter 3, atoms and molecules. Is it clear? Chapter 3 is also coming. Chapter 4, structure of atom. So totally there are 4 chapters in chemistry and all 4 are coming now. Then what about the biology portion? Unit 2, the organization of living world, cell, the basic unit of life. This we have already studied. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम पढ़ रहे हैं. चैप्टर 5 आपकी क्लास में हो रहा है और कम्युलेटिव टेस्ट में भी चैप्टर 5 आएगा. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर स्टूडेंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now next is what? The tissues chapter will also come. Cell chapter will completely come. All the organelles, basic structure, number of chromosomes, nucleus, endoplasmic reticulum, vacuoles, mitochondria, these all will come. Tissue, organ system, organization. Okay, this will come. Plant tissues, animal tissues. This is the syllabus of biology. Next chapters, which are diversity in the living organisms, is deleted. वो पिछली बार भी डिलीट था, इस बार भी डिलीट है. ठीक है? इज इट क्लियर बेटा? So आपका diversity chapter is deleted in this syllabus, and that one more chapter, that is disease chapter. Okay, disease chapter is also deleted in your syllabus. 2 chapters are deleted from biology. Clear? Yes, you ma'am. cannot see these 2 chapters. Their names are not mentioned. इनके names mention नहीं है. कौन से 2 chapter के? Why do we fall ill और एक diversity in living organisms. So these 2 chapters are deleted in your syllabus. Is it clear? Yes, ma'am. Is it clear, students? Only 2 biology chapters are coming: cell and tissues. Then physics. In physics, unit 3, motion and force. Okay, it is coming. Motion chapter is completely coming. Force and Newton's law is coming. Gravitation chapter is coming. Work, energy and power is coming, and sound is coming. Is it clear, beta?
फिजिक्स में Yes, सारे ma'am. चैप्टर्स आ रहे हैं आपके। Yes, ma'am. समझ में आ रहा है आपको? मैं आपको आपका सिलेबस रिवाइज करा रही हूँ कि आपके इस बार कौन कौन से चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में। केमिस्ट्री में पूरे चैप्टर्स हैं, फिजिक्स में पूरे चैप्टर्स हैं, बायोलॉजी में 2 चैप्टर्स कम हैं, वाइडोबिफॉलिल नहीं है, डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं Yes, ma'am. है। क्लियर? Yes, ma'am. Now next chapter which is added in biology, we will study this in biology only. This is the last chapter, food production. Clear? Plants and animal breeding, selection of quality of improvement, management, use of fertilizer, manure, protection from pest and disease. This is added. This is added in your syllabus. Previous time year में ये नहीं था, पर इस बार ये क्या हुआ है? थीम फूड ऐड हुई है। Is it clear, बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now coming to practicals. Practicals. This list of practicals. This preparation of solution we have already done. ट्रू सॉल्यूशन बनाना, सॉल्ट का, शुगर बना लो या एलम, इनमें से कोई भी एक बना सकते हैं। तो हमने सॉल्ट बनाया है। ओके, कॉपर सल्फेट भी एक सॉल्ट ही होता है जिसका सॉल्यूशन हमने बनाया। किसी भी सॉल्ट का कॉमन सॉल्ट अगर लेते हैं तो NaCl होता है, जो हमारा खाने वाला नमक होता है। तो NaCl का तो पता ही है आपको। NaCl का नमक, नमकीन पानी बनाओगे तो वो कैसा रहता है? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। ये सॉल्यूशंस हमने बना के देख रखे हैं। चीनी घोलोगे तो भी क्लियर। एलम क्या है? फिटकरी है। सस्पेंशन हमने सॉइल की बनाई है बेटा, चॉक की बनाई है, ठीक है। सैंड की भी बन सकती है। ये सस्पेंशन आपने बना रखी है। क्लियर? Yes, ma'am. आपने स्टार्च का बनाया है बेटा, एग, एल्ब्यूमिन, इनका भी बन सकता है। एग वाइट होता है ना जो, उसका भी सोल्यूशन बना सकते हैं। मिल्क का भी बना सकते हैं। मिल्क का बनता है अगर पानी में तो वो भी कोलोइडल होता है। फिर इनको किसके लिए चेक करना है? इन प्रैक्टिकल में ट्रांसपेरेंसी के लिए चेक करना है, फिल्टर होते हैं कि नहीं होते हैं, और बैठते हैं उसमें या पे घूमते रहते हैं इनके पार्टिकल, स्टेबिलिटी के लिए। तो ये प्रैक्टिकल आपने किया है लैब में। प्रिपरेशन ऑफ कर दिया था। कंपाउंड्स ये आपने नहीं किया क्योंकि ये चैप्टर 2 में रिलेटेड है। इज इट क्लियर? मिक्सचर्स और कंपाउंड किसमें? मैम एग वाला भी नहीं किया। चैप्टर 2 में रिलेटेड है, तो वो हम चैप्टर 2 के साथ करेंगे। मिक्सचर और कंपाउंड ये वाले जो प्रैक्टिकल हैं, दिस इज रिलेटेड टू चैप्टर 2। देन दिस इज फिजिकल केमिकल चेंजेस, इट्स आल्सो रिलेटेड विद चैप्टर 2। क्लियर? So you will be doing these practicals. Fourth, preparation of stem, temporary amount of onion peel you have done. All of you have visualized onion peel. Human cheek cells are remaining. Human cheek cell animal cells हैं, onion peel plant cells हैं। इनको देखना था, इनकी स्लाइड बनानी थी। माइक्रोस्कोप के अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, दिस इज रिलेटेड टू टिश्यू चैप्टर। So we will see this when we will read tissue chapter. 6. The determination of melting point, boiling point. Is it clear? Verification Yes, of law ma'am. of reflection of sound, determination of density of solid denser than water, establishing the relation between loss in weight of solid when fully immersed. So these are related to physics practical. Okay, beta? Reflection of sound, density of solids, establishing relation. These are physics practical. This is chemistry practical again. Only these two are biology practicals. Temporary mount onion peel का बनाना, parenchyma, sclerenchyma, इनकी slide देखना. Determination of speed of pulse, this is also physics. Sound से related practical है ये physics. Clear? ये सब practical आप lab में करेंगे. और verification और law of conservation of chemical, ये chemistry का है. This is of chemistry. केमिकल रिएक्शन में मास सेम रहता है. दिस इज अ केमिस्ट्री प्रैक्टिकल. दिस यू विल डू. Whenever you will do it in the lab, you will be writing it in your lab manual. Is it clear, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this we have discussed. This was a short introduction to your syllabus. Okay, which is the syllabus which is coming, which will be your yearly syllabus. वो हमने डिस्कस किया था.
Now we are going to start the revision of the cumulative test, and revision is of cell chapter. Okay, cell chapter को revise करें. Okay, ma'am. So you can see this is the cell chapter, and this is in a PowerPoint form. So you are able to see everyone. Yes, Yes, ma'am. ma'am. वहाँ बच्चे बैठे हैं. उसके अंदर पॉइंट्स दिए हुए हैं. सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है. एंड हम ऐसी साइंस जो कि स्टडी को सेल की स्टडी करती है, दैट साइंस इज कॉल्ड साइटोलॉजी. इज इट क्लियर? तो साइटोलॉजी आपकी साइंस है सेल की. सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा, पैरामीशियम, यीस्ट, आपने ये सब पढ़ा है. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग तरह के टिश्यूज डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, जिसको डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं. ये सब पॉइंट हमने क्लास के अंदर डिस्कस किए हैं. जस्ट यहाँ पर आपको क्या है कि पावर पॉइंट के फॉर्म में दिखाई दे रहा है. क्लियर? नेक्स्ट इज एंथनी वॉन ल्यूवेनहॉक. ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो कि लिविंग सेल्स देखा था जिन्होंने. क्लियर? सेल थ्योरी का पॉइंट दिया हुआ है बेटा. मैथलिश लीडेन एंड थियोडर स्वान ने 1938 में सेल थ्योरी प्रपोज करी थी, और रुडोल्फ बर्को ने 1855 में उसमें एक और पॉइंट ऐड कर दिया. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बनते हैं और सेल्स के प्रोडक्ट से बनते हैं. ये पॉइंट हो गया. एक सेकंड पॉइंट था कि हर नया सेल पुराने सेल से आता है. ये सेकंड पॉइंट हो गया. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. शेप साइज सेल का अलग अलग हो सकता है, उनकी पोजीशन और फंक्शन अलग हो सकती है बॉडी के अंदर. माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल है, और सबसे बड़ा सेल जो है दुनिया का वो क्या है? ऑस्ट्रिच का एग. तो शेप सेल में भी क्यूबॉइड, कॉलम, पॉलीगोनल, थ्रेड जैसी, इरेगुलर, कैसी भी शेप हो सकती है. ठीक है, सेल्स की पॉलीगोनल, थ्रेड लाइन. ना साइटोप्लाज्म में स्मॉलेस्ट सेल. What are you asking?
मैम साइटोप्लाज्म में सबसे स्मॉलेस्ट सेल। साइटोप्लाज्म में, मैं साइटोप्लाज्म सबसे छोटा सेल है क्या? साइटोप्लाज्म सेल के अंदर लिक्विड जो होता है उसको बोलते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड जो रहता है। ओके। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। प्रोकैरियोटिक सेल्स मैम में पता है। ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं। यस मैम। यूकैरियोटिक सेल में सारी ऑर्गेनेलीज होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस भी नहीं होता है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक Yes, सेल ऐसी सेल्स हैं जो कि बैक्टीरियाज, माइकोप्लाज्मास इनके हैं। मैम वो पूरी कंप्लीट होती है यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक ये आधे अधूरे होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल इनमें बहुत सारी चीजें नहीं होती। सबसे मेन तो न्यूक्लियस ही नहीं होता, क्योंकि प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव एंड कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। हमने क्लास में डिस्कस किया था। यस मैम, मैं Prokaryotic बता दिया cell था। have cell wall surrounding the cell membrane, but mycoplasma में cell wall भी नहीं होती है। बाकी इसको छोड़कर ये एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा सेल भी है ये भी एक तरह का बैक्टीरिया सेल है, बट इसमें ही सिर्फ अकेले इसमें ही सेल वॉल नहीं होती है। इसमें सेल वॉल नहीं होती है। इट डज नॉट हैव सेल वॉल बट इट हैज सेल मेम्ब्रेन। एक्सेप्ट लिखा है ना यहाँ पर। एक्सेप्ट यस का मैम। मतलब क्या होता है? इसको छोड़कर बाकी सब में सेल वॉल होगी, बट माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होगी। प्रोकैरियोट में राइबोसोम्स 70S तरीके के होते हैं। छोटे राइबोसोम्स होते हैं, 70S बोलते हैं उनको। राइबोसोम्स किस लिए जरूरी है? हमने ईआर के वक्त पढ़ा था। राइबोसोम्स एक ऐसा जगह है जहां पर प्रोटीन बनते हैं। राइबोसोम्स आर द Yes, साइट ma'am. फॉर synthesis. Ribosome attach with mRNA to form polyribosomes. एक ही एमआरएनए में, एमआरएनए क्या है? डीएनए की तरह दूसरा न्यूक्लिक एसिड है। एमआरएनए के ऊपर अगर बहुत सारे राइबोसोम्स जुड़े रहते हैं इस तरह से छोटे छोटे, तो वो पॉलीराइबोसोम कहलाता है। वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? पॉलीराइबोसोम्स। तो सोम। प्रोकैरियोटिक सेल में हमें पॉलीराइबोसोम्स मिलते हैं। एक एमआरएनए होता है, ये नीले वाला जो है वो एमआरएनए है। और इस एमआरएनए पे जो मैंने 8 तरह के शेप के स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, these are what? These are ribosomes. These are ribosomes. क्लियर? तो ऐसा स्ट्रक्चर इसमें एक एमआरएनए में बहुत सारे राइबोसोम्स लगे हुए हैं। वो कैसे राइबोसोम्स हो गए? वो हो गए पॉलीराइबोसोम्स। पॉलीराइबोसोम्स हो गए। इज इट क्लियर? तो Yes, सेल ma'am. में हमने ये सब समझा कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस भी नहीं होगा। 70S पॉलीराइबोसोम्स हो सकते हैं, होते हैं, और 50S और 30S उनकी सब यूनिट होती है। ये बैक्टीरिया के सेल का आपका क्या है? डायग्राम है। क्लियर? आपके बुक में भी ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। लंबा फ्लैजिला है, उसमें एक और 3 लेयर आपको दिख रही है। सबसे जो येलो वाली है, सबसे अंदर जो लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इधर देखिए, यहाँ मार्क हो रखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन येलोइश, एंड ब्राउनिश इज व्हाट? योर सेल वॉल। और यहाँ कोई न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस की जगह डीएनए जहां रखा हुआ है सेंटर रीजन, वो क्या कहला रहा है? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड है। प्लाज्मिड अलग से एक और डीएनए का मॉलिक्यूल साइड में पड़ा हुआ है, उसको प्लाज्मिड बोला है। इसका जो जेलिक जैसा सब्सटेंस है अंदर भरा हुआ है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये जो गोल गोल से यहाँ पर पूरे ग्रेन्स जैसे पड़े हुए हैं, इनका यहाँ पर छुप गया है पिक्चर में, पर ये राइबोसोम्स हैं। क्या है? मैम ये क्या है प्लाज्मिड? प्लाज्मिड भी एक तरह का डीएनए होता है, जो कि न्यूक्लियोइड के डीएनए से अलग रहता है, क्रोमोसोम से अलग रहता है। बैक्टीरियाज में ही ये होता है स्पेशल फीचर। मैम लिविंग सेल में नहीं होता मैम ये? एनिमल सेल में? एनिमल सेल यूकैरियोट्स में कहीं नहीं होता, सिर्फ ये बैक्टीरियाज। बैक्टीरिया सेल। देखो यहाँ दिया भी हुआ है प्लाज्मिड डीएनए किसी किसी इन सम बैक्टीरिया प्रोवाइड सम स्पेशल फीचर्स लाइक रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। प्लाज्मिड रेजिस्टेंस देता है एंटीबायोटिक से। स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट। और कभी कभी बहुत ही कॉर्नर पे आपका जो आपने जो एनसीईआरटी से बनाया होगा डायग्राम, उसमें कॉर्नर पे बैक्टीरिया के मीजोसोम था। मैंने भी बनाया था जब मैंने क्लास में बनाया था। जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है, तो एक कॉर्नर पे जाके वो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? वो यहाँ पर कॉइल होने लगती है,
ऐसे ऐसे करके गोल 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 होने लगती है, और उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? मीजोजोम। इस प्लाज्मा Yes, ma'am. मेम्ब्रेन के बनवाया था आपने। स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? मीजोजोम। सोम्स। तो बैक्टीरिया में मीजोसोम्स मिलते हैं, एक कॉर्नर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत कॉइल्ड हो जाती है। बैक्टीरियम स्पीशीज में भी बैसिलस, रॉड शेप, ये हमने डिस्कस किया है, बैक्टीरिया इन शेप्स के हो सकते हैं। बैसिलस में क्या बोला था? रॉड शेप। कोकस में क्या बोला था? सर्कल सर्कल से बैक्टीरिया होंगे, डायग्राम बना रखा है हमने। विब्रियो में क्या बोला था? कॉमा शेप होंगे, ठीक है। और स्पाइरलम में क्या बोला था? स्पाइरल जैसे होंगे बैक्टीरिया। ये 4 शेप है बैक्टीरिया की। इज इट क्लियर? यस मैम। तो बैक्टीरिया में बहुत लेयर्स हैं बाहर की तरफ, जैसे हमने देखा सबसे अंदर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, और उसके ऊपर 3 लेयर्स बोला था। सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर उसके ऊपर आपका ग्लाइकोकैलिक्स या मिडल वन सेल वॉल। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, आउटर मोस्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स को क्या बोल सकते हैं? कैप्सूल भी बोलते हैं कभी कभी ग्लाइकोकैलिक्स को। कुछ कुछ बैक्टीरिया में ये टाइट रहता है तो कैप्सूल की तरह बोला, जैसे हम कैप्सूल खाते हैं, कैप्सूल के ऊपर की कवरिंग कितनी टाइट सी होती है, बिल्कुल टफ रॉड जैसी, जो उसको पूरा फिक्स शेप दे सकती है कैप्सूल को, ठीक है। ट्यूब जैसा नहीं होता कैप्सूल, वैसे ही ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल के भी ऊपर वाली लेयर है। अगर ये टाइट होती है तो इट इज कॉल्ड कैप्सूल, और अगर ये बहुत ही लूज है तो वो भी दिया हुआ है बैक्टीरिया में, तो उसे स्लाइम लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है, आपको पता ही नेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। जब हमने हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक ये सब पढ़ा था, तो पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल इन नेचर, ठीक है। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन फॉर्म में हो सकती है, वेसिकल्स की फॉर्म में हो सकती है, ट्यूब्स की। मैंने बोला था ईआर में ट्यूब्स भरी रहती हैं, तो वो ट्यूब्स कुछ और नहीं है, वो मेम्ब्रेन की ट्यूब्स हैं। उनको पाइप की ट्यूब्स और प्लास्टिक की ट्यूब मत समझ लेना, वो सेल के अंदर है तो वो किसकी ट्यूब्स हैं? मेम्ब्रेन की ट्यूब्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ट्यूब्स है। इज इट क्लियर? मैम न्यूक्लियस के नीचे रहती है वो ट्यूब। हाँ, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पूरे साइटोप्लाज्म में भरी हुई हैं, वो ट्यूब्स के फॉर्म में, वेसिकल्स के फॉर्म में, यार मेम्ब्रेन माउंट ट्यूब्स। क्लियर? यस मैम। डीएनए Yes, ma'am. रेप्लिकेट करता है, डिस्ट्रीब्यूट डीएनए का। जब भी डीएनए रेप्लिकेट करेगा वो तो सेल्स के अंदर डिवाइड होने के लिए करा है उसने। जब एक सेल से 2 सेल बनेंगे डॉटर सेल्स, तो उसमें डीएनए डिस्ट्रीब्यूट होगा। मोटाइल बैक्टीरिया सेल कंटेन फ्लैजिला कंपोज्ड ऑफ फिलामेंट होकर बेसल बॉडी। फ्लैजिला के अंदर भी लंबा सा रिबन जैसा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर भी। अगर हम इतना डिटेल तो वैसे हमारी बुक में नहीं दिया, बट हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर भी प्रोटीन का बना होता है फ्लैजिला। फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर होता है जो सबसे लंबा होता है, फिर एक हुक जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कनेक्टर होता है, और बेसल बॉडी पूरी सेल रहती है। कभी बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल्स भी मिल सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गीज में। यूकैरियोटिक सेल के बारे में आ गया, येलो स्लाइड में आप देख सकते हो। आर यू एबल टू सी? स्लाइड इज शेयर्ड। आर यू एबल टू सी बेटा? Yes, ma'am. ओके, सो यूकैरियोटिक सेल में प्रोटिस्टा में प्लांट, एनिमल, फंगी, साइटोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। मतलब यूकैरियोटिक सेल में ये एग्जांपल्स हैं यूकैरियोटिक सेल के। मैंने लिखवाया था कि सिर्फ एक मोनेरा को छोड़कर बाकी सारे किंगडम, देयर आर 5 किंगडम्स, तो मोनेरा को छोड़कर बाकी सारे चारों किंगडम क्या हैं? यूकैरियोटिक है। सिर्फ मोनेरा पहला किंगडम है जो बैक्टीरिया का है, और बैक्टीरिया उसमें आते हैं प्रोकैरियोट्स में। बाकी सारे के सारे जितने भी आपके किंगडम है, प्रोटिस्टा हुआ, ठीक है, फंगी हुआ, एनिमल्स, प्लांट्स, ये 4। प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ जैसे मैंने बताया था, अमीबा आते हैं, पैरामीशियम आते हैं इसमें, फंगी, ठीक है, फंगस होती हैं जो। प्लांट्स आप जानते ही हो, प्लांट्स क्या है, एनिमल्स, ये सब क्या है? दीज आर यूकैरियोटिक। इज इट क्लियर? इनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। मैम टू न्यूक्लियस। Cells contain well-organized nucleus with nuclear membrane, genetic material arranged in chromosomes. Genetic material cells में chromosomes में arrange होता है, आपको पता ही है, हमने पहले
देखा कि सेल के अंदर अगर थ्रेड के फॉर्म में भी घूमता रहेगा क्रोमेटिक मटेरियल, बाद में जाके जब सेल डिवाइड होगा तो उसको क्या एक्स शेप का स्ट्रक्चर यानी क्रोमोसोम बनाना पड़ेगा। डीएनए किसके फॉर्म में रहता है? क्रोमोसोम के फॉर्म में रहता है। इज इट क्लियर बेटा? यस मैम। Plant cells differ in having cell wall, plant plastid, large central vacuole as compared to animal cell. Plant cell और animal cell में क्या फर्क है? Plant cell के अंदर vacuole रहता है और बहुत बड़ा होता है साइज में, और एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता। इज इट क्लियर? वैक्यूल क्या है मैम ये? वैक्यूल एक बस मेम्ब्रेन का कंपार्टमेंट है। सेल के अंदर वैसे भी इतनी सारी ऑर्गेनेली, कहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया है, यूकैरियोटिक सेल तो भरा हुआ है पूरी ऑर्गेनेली से, तो वैक्यूल भी एक तरह की ऑर्गेनेली है, सिर्फ एक बड़ा सा मेम्ब्रेन बाउंड खाली कह सकते हैं बैग की तरह। चाहे तो वो गैस से भरेगा तो गैस वैक्यूल बन जाएगा, पानी से भरेगा तो सैप वैक्यूल बन जाएगा, और अगर उसके अंदर कुछ भी चीजें एक्स्ट्रा सेल बना रहा है वो सारी चीजें वैक्यूल के अंदर स्टोर होती रहती है। अगर वैक्यूल के अंदर वेस्ट भरने लग गया तो वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बन जाएगा। वैक्यूल इज जस्ट लाइक अ स्टोरेज ऑर्गेनेली, कुछ भी स्टोर करना है सेल को तो वो वैक्यूल में स्टोर कर लेता है। इज इट क्लियर? यस मैम। प्लांट में वैक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, और एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स नहीं होते, बहुत ही छोटे होते भी हैं तो बहुत छोटे, क्योंकि उनको एक्टिवली चीजें करनी होती हैं और चीजें अपनी प्रोडक्ट्स बाहर रिलीज करने होते हैं। बट प्लांट क्या करता है? स्टोर करके रख सकता है बहुत चीजों को। प्लांट इसीलिए बड़े बड़े वैक्यूल रखता है। प्लस प्लांट को सेल्स को स्ट्रेच करके रखना होता है, फोटोसिंथेसिस करनी होती है, काफी काम करने होते हैं प्लांट्स को, अपना फूड खुद बनाते हैं ना वो, इसलिए। Animal cells have centrioles which are absent in plant cells. Last point क्या है कि animal cell के अंदर, जैसे plant cell में vacuole special बात थी, वैसे animal cell में centriole special बात है। Centrioles क्या है? They are the arrangement or organizing centers for microtubules. Microtubules नाम के जो structures हैं जो कि क्रोमोसोम्स को डिवाइड करने के काम आते हैं। जब सेल डिवाइड करेगा, क्रोमोसोम्स जितने जाने हैं डॉटर सेल्स में बराबर बराबर उतने भेजेगा, तो उसको कहीं पर क्रोमोसोम्स को अलाइन करने की तो जरूरत होगी, तो वो अलाइनमेंट करना, बिल्कुल एक एक लाइन में रखना, सारे जितने भी क्रोमोसोम है उनको इक्वेटर, जैसे अर्थ में सेंटर में इक्वेटर है, वैसे सेल भी अपने सारे क्रोमोसोम्स को इक्वेटोरियल रीजन पे अरेंज करता है। ये सेल हो गया, इसके क्रोमोसोम्स हैं वो सारे के सारे एक्स शेप क्रोमोसोम्स, ये ऐसे अरेंज कर लेता है। यहाँ पर एक क्रोमोसोम अरेंज किया, फिर दूसरा क्रोमोसोम अरेंज किया सेंटर में मिड लाइन में, और इसको अरेंज करने में हेल्प करता है एक 90 डिग्री जैसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स जो दोनों तरफ रहते हैं, किधर रहता है और एक दूसरे पोल पे रहता है, क्योंकि सेल को डिवाइड होना है, और वो इनके सेंटर्स में पकड़ने के लिए ट्यूब्यूल्स देते हैं। पूरे यहाँ पर सब जगह एक एक क्रोमोसोम अलाइन होगा, एक एक क्रोमोसोम सेंटर इक्वेटर पे, और ये जो सेंट्रियोल्स होंगे, दीज आर व्हाट सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स इनको अलाइन करेंगे, सेंट्रियोल्स विल अलाइन देम, उनको पकड़ पकड़ के रखेंगे बीच में, ताकि जब सेल डिवाइड हो, एक सेल से दो सेल बने, तो क्रोमोसोम क्या जाए, बराबर बराबर जाए, दोनों में क्रोमोसोम्स बराबर जाए दोनों सेल्स में, तो सेल डिवीजन में काम आता है सेंट्रियोल। इज इट क्लियर? यस मैम। नाउ हम देख सकते हैं झटपट, अगर हम एक इमेज देखें, तो हमें पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कह रही हूँ। Are you able to see? यस मैम। Yes, ma'am. तो ये येलो कलर के जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये वाले, ये जो 90 डिग्री पे रखे हुए हैं, यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, बीच में बहुत सारे क्रोमोसोम्स अलाइन हो रहे हैं, और ये ऑरेंज ऑरेंज कलर के ही फाइबर्स निकाल रहे हैं जो हर क्रोमोसोम को पकड़े हुए हैं बीच में। तो ये वाले स्ट्रक्चर डिवाइड करने में हेल्प करते हैं, इन्हीं को सेंट्रियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं?
सेंट्रियोल्स। इस वाले इमेज से ज्यादा क्लियर होगा क्योंकि उसमें डायग्राम में लेबल कर रखा है. कैन यू सी यस मैम। this image? Centrioles are marked over here. Have you seen ना? इसमें ब्लू कलर के दिखा रखे हैं बेटा centrioles. They are helping in chromosome alignment. Clear? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. मैम ये क्या है? माइक्रोफेज प्लेट एंड माइक्रोसोम अटैचमेंट ऑफ किंग। हाँ, ये माइक्रो जब सेल डिवाइड होता है तो क्रोमोसोम्स की अटैचमेंट को माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ देता है. माइक्रोट्यूब्यूल्स फाइबर्स हैं जो कि फाइबर्स निकल रहे हैं सेंट्रियोल से, वो भी प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं, तो क्रोमोसोम को अटैच कर. क्लियर? यस मैम। मैम. अब हम आ जाते हैं आगे अपने उस पे ही. कैन यू सी दिस पावर पॉइंट? तो एनिमल सेल में आपको सेंट्रियोल्स मिलेंगे, प्लांट में आपको नहीं मिलेंगे. अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस बिटवीन है. तो एनी वन ऑफ यू कैन आल्सो रीड. आप भी पढ़ सकते हो उसको. स्क्रीन तो आपको शेयर हो रखी है. रीड इट. एनी वन ऑफ यू कैन रीड द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. रीड. Prokaryotic cells. Membrane bound nucleus is absent. Cells are similar in size. Single chromosomes is present. Membrane bound organelles are absent. And eukaryotic cells. Membrane bound nucleus is present. Cell are larger in size. More than one chromosomes in present. Membrane bound organelles are present. ओके. सो आपने सही से पढ़ा है इसको. अच्छा है, वेरी गुड. प्रोकैरियोटिक के सारे पॉइंट एक साथ बोले हैं कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वाला होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, यानी मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है. एंड यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता. मेम्ब्रेन सॉरी उल्टा बता दिया. प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, एब्सेंट होता है. और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है. जैसे कि आप नीचे देखेंगे प्लांट और एनिमल सेल्स, इन दोनों में न्यूक्लियस है. कैन यू सी? Yes, ma'am. तो दीज आर यूकैरियोटिक सेल्स. ये जो सेंटर का बॉल जैसा स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको आराम से, ये आपका न्यूक्लियस है. इसमें यहाँ पर सबसे डार्क चीज न्यूक्लियोलस, हमने भी इसका डायग्राम बनाया था. आप देख सकते हो उसके ऊपर पोर्स भी दिख रहे हैं, छेद भी दिख रहे हैं. ओके, न्यूक्लियोपोर्स. और इसके अंदर जेल जैसा भी भरा रहता है, न्यूक्लियोप्लाज्म. ये हमने पूरा डिस्कस किया था. तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता. इज इट क्लियर? पहला पॉइंट. Yes, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट इज सेल स्मॉलर होता है साइज में. प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल लार्जर होते हैं साइज में. साइज इनका बड़ा होता है. ये मैंने डिफरेंस बिटवीन आपको कॉपी में भी करने को कहा था. एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का. आपको उसमें गैप्स हैं बीच बीच में, फिलअप्स करने हैं. उसमें कर रखा है आपने कि नहीं करा? मैंने कॉपी चेक करी थी, मुझे नहीं दिखा किसी की भी कॉपी में, तो इसलिए मेरी तरफ से तो आपने नहीं करा है ये डिफरेंस बिटवीन. तो अगर नहीं करा है तो आपका आज का होमवर्क यही है. ठीक है? Okay, ma'am. डिफरेंस बिटवीन वाला ब्लू क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का, वो आपको लिखना है. डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट. प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम कितना होते हैं, कितने नंबर में होते हैं? सिंगल होता है क्रोमोसोम. और यूकैरियोटिक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? Ma'am, More than one. वन से ज्यादा होते हैं. कितने भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कौन सा ऑर्गेनिज्म है. जैसे हमारे अंदर ह्यूमन में फिक्स है 23 पेयर होते हैं हमारे अंदर. ठीक है, तभी हम ह्यूमन है. अगर हमारे अंदर 22 होते, एक कम होता तो हम चिंपैंजी हो जाते. तो हर एक ह्यूमन का अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है. मटर के दाने में 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. तो ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म का डीएनए तभी उस तरह के फीचर्स देता है जितने क्रोमोसोम्स होते हैं.
तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के क्रोमोसोम बहुत छोटे हैं, उनका साइज भी छोटा है। छोटे क्या, एक ही क्रोमोसोम है उनमें। क्लियर? और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स के नंबर अलग अलग होते हैं, पर एक से ज्यादा होते हैं हमेशा। क्या होते हैं? मोर देन 1। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एब्सेंट होती है, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली का क्या मतलब है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली? एग्जाम्पल दे सकते हैं कोई? जल्दी बताइए। सेल ऑर्गेनेली है बेटा ये, दे आर ओनली सेल ऑर्गेनेलीज। मेम्ब्रेन बाउंड बोल दिया तो क्या समझ में नहीं आया आपको? सेल ऑर्गेनेलीज को ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कहते हैं, क्योंकि उनके सबके ऊपर मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है। अभी हमने देखा था नीचे न्यूक्लियस, क्या ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है? मैम है। इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन्स हैं, उसके अंदर पोर्स भी है, उसके अंदर जेल भी है, और बाकी ये सब जो नाम दे रखे हैं ये क्या ऑर्गेनेलीज नहीं है? वैक्यूल भी अभी भी आपको बताया ऑर्गेनेलीज है। सेंट्रियोल्स तो चलो वो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं चढ़ी हुई है, पर ये क्या है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, एनिमल सेल का डायग्राम है। दिस इज व्हाट ट्यूब का नेटवर्क, ठीक है? जो नेटवर्क नहीं है, बस बैग्स एंड ट्यूब्स के बहुत सारे एक साथ रखे हुए। ये गोल्जी है, इसका नाम नहीं है मार्क करके रखा हुआ, बट इस तरह की पैकेट्स जो एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग वे में रखे हुए गोल्जी होती है। यहाँ पर क्या दी हुई है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, न्यूक्लियस के जस्ट बाद जो ऑर्गेनेली होती है उसका नाम क्या होता है? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक और ऑर्गेनेली का नाम बता रखा है लाइसोसोम। ये पर्पलिश रंग की ऑर्गेनेली अंदर रखी हुई है, यहाँ पे भी है।